See, let us take the volume 1. I don't know, there is have you done this, Manika Gandhi? No, not yet, sir. Leave it. Sharad Birdi we have done. Okay, let us start this Sharad Birdi Chand. Yes, sir. So just I'm going to open. Okay, this is sufficient. It's coming at page number 212. 212. So this is the Sharad Birdi Chand, right? Yes, sir. Let us be a little bit interactive. Does anyone has any idea what is the citation SCR citations of that? If you completed something, something is expected, it would be keep in your mind. See, the one clue is there. It was decided on the 17th July. I didn't expect to be remember this day, but at least I would be expect you will remember the year of decision. The first thing. The next thing is Sharad Birdi Chand Sarda versus state of Maharashtra. This is the important thing. It is called the cause title, and you need to be remember this cause title because this is going to be used for the purpose of references. And the next thing is who was the part of the quorum. S. Murtaza Fazal Ali, A. Vaidyanathan, and Sabyasachi Mukherjee. It was a three judges bench. So what I'm saying, just go through the entire name of the judges. Mr. Justice S. Murtaza Fazal Ali, Mr. Justice A. Vaidyanathan, and Mr. Justice Sabyasachi Mukherjee. Vardarajan, sir. Sorry? Vardarajan. A Vardarajan. Vardarajan. A. Vardarajan, right. Yes, sir. I'm sorry. And then find out from the judgment who is the author of this judgment. Of course, this is Murtaza Fazal Ali. In 1984, right? I would like to invite your attention. There was one more Fazal Ali in the year of 1950 to 1955. He was the judge of the Supreme Court.
and the author of the literally very good judgments. So there might be certain confusion among them. So be careful to avoid all the confusion concerned to the name of the author of judgment. So these are the preliminary part we need to focus, keep our attention alive on that particular point so that we can refer it. Now, come to the point. These are the parts I'm not going to discuss. This is the things, italic or what they are saying. What is that? But at this moment, I would like to recollect the points discussed into or the law framed regarding the points into this particular judgment, Sharad Birdi and Sarda. The first point is this is the Article 136 and the interference by the Supreme Court with the concurrent finding of fact of the courts below normally not permissible. Normally not permissible. In our day-to-day life, almost 99% in instances are normal. Exceptionally or rarely arises certain special circumstances. So for special circumstances, and what is that? Error of law, violation of well-established principle of criminal jurisprudence, etc., would be necessary for interference. Am I clear up to this point or not? So the point is very clear when Article 136 in the criminal cases is warranted to entertain. And that is the special circumstances, not in all the circumstances. So whoever is understanding ki SLP is a regular routine course before the Supreme Court, it's not like that. Why? This is a very serious question. We need to think. We need to understand exactly what is the exact situation where the SLP may be entertained so that we can press our case accordingly. Or we can plan accordingly, not press. क्योंकि प्रेस तो आपको करना ही पड़ेगा सारे केस को. Now, this was confined to point 1 regarding the 136 application. And that condition is also there. Certain things is written, few things are written there. Error of law. So what is the meaning of error of law? Violation of well-established principle of criminal jurisprudence. What does it mean? These two things, error of law and violation of well-established principle of criminal jurisprudence, it itself a very broader range, very high scope. Once we are saying error of law, और उसमें मैं कहूँ कि क्या नहीं आता है जिसमें कोर्ट इंटर करते तो शायद कुछ भी नहीं बचे. Everything is there error of law. That's what the court is there. So इसका broader meanings आगे explain किया हुआ है and I would like to invite your attention that it is the first point dealt with in this judgment. Why? Because without explaining this, why we should enter into the judgment? We cannot enter into them. First, we have to explain why I am going to disturb the Simpung judgment and what is into that, what the principles regarding the interference of the
informed judgment under Article 136. Second point is discussed regarding the circumstantial evidence. So, what is the nature and proof of this circumstantial evidence? What is the conditions precedent for the conviction? किस कंडीशन में वो ये कन्विक्शन की तरफ लीड होना चाहिए? It is confined to Section 3 of the Evidence Act 1972. It was concerned to, very precisely I am talking about, just have a look on that. यहाँ पर है, ये लाइन जो अंडरलाइन एंड हाईलाइटेड है, दिख रहा है? This is evidence, circumstantial evidence. And again, another one is also this. So what is the difference among these two? The difference is nature and proof of circumstantial evidence. And second is the onus of proof, how this is shifting. That's the difference between these two. If someone is asking ki just come and explain about the nature of the circumstantial evidence and proof, this is leading towards the condition precedent for conviction. But someone is talking about the onus of proof. Who will prove what? Who will establish what? The presumption must prove every link of the chain and the complete chain. So the point is, this is the condition, and this is the demonstration of the condition made as per the circumstantial evidence. And it is the duty of one party, either prosecution or that, or something as per the principles laid down in the previous one. Am I clear up to this particular point or not? That's the difference, and that's the difference will reflect into the question itself. It is very clear कि कब आपको वो सेक्शन के पूरी विसिनिटी क्या है, और दूसरा ये है कि अप्लाई करने के लिए किसका क्या रोल है. Once the process will start, who will play what role? So infirmity or lacuna in the prosecution cannot be cured by false defense or plea. False defense or plea means what? ये रिफ्लेक्शन क्या जाता है? किसकी false plea? यहाँ पर बात हो रही है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की. यहाँ वर्ड यूज किया गया है प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. So it is very clear in the criminal what is the meaning of prosecution and defense, criminal proceedings. Once we are in the criminal proceeding, the case is established by the prosecution. It is the state, and defense is the accused. So the meaning of this line is infirmity and lacuna in the prosecution cannot be cured by false defense or plea. Suppose in a case, prosecution has to establish their case.
but feeling certain difficulty, unable to fill up. But what they are doing, they are taking the defense taken by accused, and if that part is putting into the prosecution, then the chain is being looking like incomplete. So the principle says prosecution cannot fill up your own lacuna through the defense plea. First you established incomplete, पहले आप उसको एक्यूज साबित करो, तब वो डिफेंस लेगा कि नहीं मैं एक्यूज नहीं हूं, और आप जो साबित करोगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अंडर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. Basically, the prosecution cannot see that even defense is wrong in its place. Prosecution, उसमें they are wrong, they are wrong clearly in their defense is false. the prosecution must stand on its own अब case. आप ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ झूठ बोल रहा है इसलिए उसको हम यहाँ लेकर के ऐसे कर सकते The prosecution हैं must कि वो stand झूठ on बोल its रहा own. है, लेकिन उसके झूठ का एडवांटेज आप नहीं ले सकते. यू आर ऑन योर फुट, यू आर ऑन योर लेग, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर ओन केस. दो रीजन है, एक तो उनका टर्न आपके बाद आएगा, जब वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएं प्रॉपरली कि वो एक्यूज्ड हैं, देयर आफ्टर उनका डिफेंस शुरू होगा. अब वो साबित करें कि वो एक्यूज नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि वो एक्यूज है. लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर बट यू कांट टच. अब ये कितनी स्ट्रिक्टली ली जाती है ट्रायल कोर्ट में और इवन हाई कोर्ट में, ये देखने वाली बात. और यदि नहीं ली गई है तो एज पर दिस जजमेंट इट इज अ गुड ग्राउंड टू चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट, एंड इट इज फॉर द कन्विक्शन ओनली, not for the acquittal, but in the circumstantial evidence case. And थोड़ा elaborate किया गया, a person cannot be convicted on pure moral conviction. Such kind of conviction may be called on the moral conviction, because evidence collection तो moral conviction यहाँ पर क्यों कहा है, लिखा हुआ. Moral conviction is means what? On sixth sense, presumption, not on evidence. क्लियर एविडेंस नहीं है, अब हम सोच रहे हैं कि उसने ऐसा फॉल्स वहां बोला इसलिए इन्वॉल्व होगा. नॉट लाइक दैट. दैट इज कॉल्ड द मोरल. कुछ भी आप इन्फर कर लें और उसके थ्रू आप कन्विक्शन को लीड करें, दिस इज नॉट गुड. फॉल्स एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज एडिशनल लिंक टू fortify the prosecution case, subject to satisfaction of certain conditions. So there is certain subject. कुछ exceptions है, but usually not normal case, but some certain different case. Doctrine of proximity. Next point is, so another point was that first point was the interference by the Supreme Court with concurrent finding of fact when permissible. Another point is nature, proof, and onus of proof or circumstantial evidence. And next one is doctrine of proximity. Concept of nature and limits are explained regarding doctrine of proximity. आप याद रखिए, concept, nature and limit, तीन अलग अलग चीज यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है. वन इज द कॉन्सेप्ट, another is the nature, and third is the limit of what? Of the doctrine of proximity. Once the court will ask
I mean, examiner will ask, what is the doctrine of proximity? Everyone would be collapsed under the examination. Okay, this is the part of Sharad Birdi, isn't it? अजय जी, है ना इंटरेस्टिंग? इस चीज को तो ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा हर बार। मतलब देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऑल ऑफ रेंडम आपके सामने हमने जजमेंट उठाया और इसको मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट नोट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, डिफरेंसेस बस क्रिएट कर रहा हूँ कि कहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए। और यदि मुझे आप क्वेश्चन पिकअप करने के लिए कहें तो मैं एक क्वेश्चन इस पे जरूर बना दूं। 1 नंबर का भी बनाओ, 2 नंबर का भी बनाओ, 3 नंबर का भी बनाओ, क्लियर कट मार्क्स चाहिए और पूरी टेस्ट भी कर लो। पूछिए कैसे? यदि मैं पूछूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी के कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर नेचर क्या है, या फिर लिमिट क्या है, एक एक नंबर के लिए रखो मैं अलग अलग। जो हमको सटीक नंबर देगा, मैंने आंसर रिस्पॉन्ड करेगा, वो मार्क्स लेगा, नहीं तो नहीं। इट्स अ टेस्ट ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड, इट्स अ टेस्ट ऑफ अलर्टनेस। और यदि इसको 1 नंबर में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है, यदि आपने यहाँ फोकस किया है तो आ जाएगा, जो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट एंड डाइंग डिक्लेरेंस अंडर सेक्शन 8 and 32 of the evidence act. This is something related to this part. Now, murder by administration of poison, circumstances that should be looked into before a conviction. This is section 300 of the penal code. Now they entered into the penal code, IPC, and this is concerned to the section 300. Murderer by, this is the very peculiar circumstances, is this administration of poison. This is the circumstances. इसको जरूर देखना चाहिए बिफोर कन्विक्शन, एनी टाइम बिफोर द कन्विक्शन। इमेजिन कीजिए, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, बहुत सारा सर्कमस्टांसेस है, तो यदि किसी को पॉइजन देके मारा गया, कंस्पायर्ड करके पॉइजन दे करके मारा गया, ये जो मर्डर है, द कॉन्सेप्ट एंड मोडस ऑपरेंडी ऑफ द मर्डर है, दिस इज बाउंड टू लीड टुवर्ड्स द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इजंट इट? किसने जहर दिया, कब, कैसे जहर दिया, ऐसा तो नहीं है कि पकड़ा मुंह के अंदर जहर दिया एंड ये भी हो सकता है। बट पॉइजन देने वाली जो घटनाएं होती है वो साइलेंटली दिया जाता है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द विक्टिम। It is dealt with the section 300. So the evidence appreciation of evidence of interested witness, especially that is close relative to the deceased. So the what is the duty of court? It is also explained in section 3 of the Evidence Act, how to deal that. Now the next part is concern to the benefit of doubt. कब, कैसे, कहाँ और किस सिचुएशन को हम बेनिफिट ऑफ डाउट कहेंगे, और किस सेक्शन के तहत बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सटेंड होता है? This is the section 101 to 104 of the Evidence Act. When two views are possible, मतलब ये कि इस घटना का ये मतलब निकल सकता है, तो ये भी मतलब हो सकता है।
दिस इज द टू व्यूज एटलीस्ट, और अदरवाइज भी हो सकता है, और दोनों व्यू हो सकता है कन्विक्शन की तरह लीड करे और एक ही चीज कंफर्म करे कि इसी ने किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने नहीं, कोई एक व्यू ये कहे कि इसने किया, दूसरा व्यू ये कहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता. So this is the very interesting part, to identify the two views or create a two views on a certain fact, set of fact. So when two views are possible, one leading to guilt of the accused and the other leading to his innocence, the benefit of doubt should go to the accused in telling his acquittal. Section 101 to 104. So when two views are possible, ये टेस्ट मैंडेटरी. The test is, out of these two views, one view must be leading to the guilt of the accused, and the another view is leading to his innocence. Then we can say the doubt, and then it would be extended towards the benefit of doubt. And benefit of doubt must be extended to the accused. But before that, these two views must be constructed before the court at any forum, not during trial only, even during this appeal or even before the Supreme Court. So once you created the benefit of doubt, the doubted situation, then you can take the advantage. Before this court, we have to test the benefit of doubt. We have to apply the, testimony regarding the interested witness, when it is used and when it may not be used. This is also important. Even though doctrine of proximity and then circumstantial evidence, nature, proof, onus of proof, and even the five golden principle which is narrated there. And before that, it will also take you towards this 136, why this case is fit for interference by the Supreme Court with the concurrent finding of that before court below. Why your case is a very special, when the special circumstances. Meaning there, why in this special circumstances only a special leave to appeal may be granted or may be entertained. Granted means interference with the judgment itself. Examination of accused under section 313 of the CRPC, circumstances not put to the accused to explain cannot be considered for conviction. So this is also the trial's wisdom, the court. So ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस किया, 3-4 पॉइंट्स हमने रखे हैं, 303 हो गए, even circumstantial evidence, 5 golden principle और 136. These points and steps, यदि इसको मैं वापस समराइज करूं और 1 by 1 करूं, नंबर काउंटिंग सिर्फ करूं, तो आपको क्या पता चलता है? This first paragraph is given the 1 point. We can club it up, second and third, giving the first, second is giving the principle, third is the execution of that principles. So legal principles is there, which is comprises the 5 golden rules maybe, and the another is this the principles how to go there. So these 2 points, applications is there, who will take lead in what and what would be the conclusion as per this
principles which is explained earlier. So this is the application of this with all the conditions. So concerned to the circumstantial evidence only, what we can say more. Section 3. So this is confined to the section 3 itself. Now, broaderly, if I will go, so just have a look on this Evidence Act section 3. Here is another is the application of this during trial, which must be examined at any level or appellate level or even the Supreme Court level. Or if not found proper, it must be fit case for the interference as per the para 1. And this is again concerned to the section 3 of the Evidence Act. This is called the duty of the court. Under section 3 of the Evidence Act, appreciation of evidence, court will appreciate which evidence is good and bad. It is concerned to the, especially confined to the interested witness. Duty of the court under section 3. Again, if you will go down, so this is the CRPC. So for the purpose of Evidence Act, there are certain parts is dealt with the Evidence Act. One is the section 3, which is concerned to witness. Section 8 and 32, which is confined to the admissibility of this statement and dying declarance, called doctrine of proximity, concept and nature and limit. And third point is discussed regarding section 101 to 104 for the purpose of benefit of doubt to the accused. So these three parts picked up to explain and discussed in this case from the Evidence Act only. Am I clear up to this point or not? Yes. Is there any doubt up to this point? Should I repeat it again or should I continue further? Continue, sir. Continue. Okay. And अब हम फिर से कंसोलिडेट कर रहे हैं. आप जरा देख लीजिए कितने पैराग्राफ पिकअप किए गए हैं सिर्फ एविडेंस से. एविडेंस के कितने फैसेट को डिस्कस किया गया है ड्यूरिंग दिस असेसमेंट. आपको हमने 3 पार्ट यहाँ दिखाया. One is this, the benefit of the tag. Take a tag word from the Evidence Act. One is the benefit of doubt. Another is the application of evidence. या फिर आप ये कहें evidence of interested witness. ये कहना ठीक नहीं होगा. ठीक ये होगा appreciation of witness. Once we are saying appreciation of witness, automatically includes the duty of the court. This is the another part of this section Evidence Act. Third is the doctrine of proximity, their concept, their nature, their limit. Next is the circumstantial evidence principles, which is nature, proof of the circumstantial evidence. This is the nature means what? Nature of circumstantial evidence. And proof means what? Proof of circumstantial evidence. And onus of proof of circumstantial evidence. Am I clear up to this point or not? So these things are picked up from the section 3 of the Evidence Act. Now let us enter into somewhere into the IPC. Section 300 taken from the IPC.
and then come to the CRPC, and section 313 is taken from the CRPC. So after going through all these things, यदि मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊं, शॉर्ट नोट्स में मैं थोड़ा सा एक पार्ट लिखूं, दिस इज द आर्टिकल 136, सेक्शन 3, 8, 32, 101 to 104 from Evidence Act, section 300 of IPC, and section 313 from CRPC. इतना क्लू काफी है इस पर्टिकुलर जजमेंट के लिए. यानी यदि मैं शरद बिरदी चंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, along with the citation, and the citation is 1985 1 SCR 88, एक लाइन में लिखूं और उसके साइड में मैं ये लिखूं आर्टिकल 136, A minus 136 is the article 136, 3, 8, 32 और 3 को मैं बोल्ड कर दूं, क्योंकि 3 के लिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आएगा, जो ऑलरेडी यहां पर है, for the coding purpose and understanding of ourselves, and 101 to 104 of Evidence Act. और तीसरा लाइन में लिखूं S30 under bracket IPC on section 313 under bracket CRPC. Does this not sufficient to understand the entire case, what we studied? To recall our memory. Let me change, let me do something more. If I will go, so every time you will the complete set of this particular Sharad Birdi Chand. Now I am going little bit deeper. So at the side of article 146, I'll also write this phrase word, concurrent finding of the fact of the court below. Normally not permissible. मैं वहां लिखूंगा when permissible. So this part would be covered to recall my memory as and when I required. I will write nature against the section 3, nature, proof, onus, under circumstantial evidence, or even application of interested witness. साइड में ये भी लिखूंगा ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, एंड देन बेनिफिट ऑफ डाउट. उसके साइड में ये भी लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर सेक्शन 101 to 104, एंड देन आईपीसी 300 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, and 313 accused explanation. Accused explanation, CRPC. थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया हमने, डॉट्स निकाल लिया so that we can connect the entire judgment. Am I clear up to this point or not? And now this page, which would be around one paragraph, it would be your own notes
to understand the entire case, to recall the entire case. Even the half page, even the 1 page note which will contain the minimum words which assist you the recall your memory 100%, it would be your own notes. The question is how to prepare the notes. So this is the principle. I am not going into the fact of this case. It will be asked from you people after some time, but I am going to demonstrate something which is finded out. It was authored by Justice Fajal Ali, killed. So keep in mind to those particular views, order and points which way I discussed for the Sharad Birdi right now from the italic head notes. And for that understanding, to develop that particular understanding, we just discuss this 1 page only. 1 page मैं इसलिए कह रहा हूँ, someone can say कि this is the more than 1 page, which is the 3 or 4 lines. मेरा थोड़ा वो ऑप्टिमाइजेशन का अलग हिसाब किताब है. यदि मैं इतना चीज यहाँ से हटा दूं, यहाँ से यहाँ तक, उतना जगह बन जाएगा कि वो एडजस्ट हो जाए. हम 1 पेज से ज्यादा कहने का हिम्मत नहीं कर सकते. In true letter and spirit, these are in the one words, 1 page only. So if you will take the print out of this page only, of this Sharad Birdi, this is sufficient to recall entire memory on the spot once you will see or have a look on this particular page without doing anything. आपको आपने जो करना था वो कर लिया. इसमें ही आपको पूरी तरीके से वो सब कुछ सामने आपके होगा और आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी. Once you did fairly, properly, then. And now, this is the fact of the case. I'm not going into them right now. We'll come back again. I'm confined on law only. What law emerges, which is general in nature, which can be applied in everywhere. So this is the 1.1 is there, which is talking about what? Article 136, 1.1, 1.2, 1.3, and done. What says? It says, elaborately says, it's a particular copy from the judgment. Normally, the Supreme Court does not interfere with the concurrent finding of fact of the court below in the absence of very special circumstances. So not only the special, it also should be the very special or gross error of law committed by the High Court. Now, what is this very special circumstances and what is this gross error of law committed by the High Court, where the High Court ignores or overlooks the crying circumstances and proved fact. Proved fact को ignore करना, gross error of law and very special circumstances. और भी है, proved fact or violates or misapplies the well established principle of criminal jurisprudence, गलत अप्लाई कर दिया या उसको वायलेट कर दिया कंडीशंस को, criminal jurisprudence, or decisions rendered by the court on appreciation of circumstantial evidence and refuse to give effect of benefit to the accused despite fact apparent on the face of record or its own finding, or tries to gloss over them without giving any reasonable explanation, or
committed errors of law apparent on the face of a record, which results in a serious and substantial miscarriage of justice to the accused. So condition is which results is important. It is the duty of the court to step in and correct the legally erroneous decision of the High Court. Now, again, I am reconciling. So, normally the Supreme Court does not interfere with the concurrent finding of fact of the court below in the absence of very special circumstances or gross error of committed by the High Court. So, what is this very special circumstances and gross error of the law? Let us reconcile. But this is the special where the High Court ignores, where the High Court ignores or overlook the crime circumstances and proved fact or violates and misapplies the well-established the principle of circumstantial jurisprudence rendered by this court on appreciation of circumstantial evidence and refuse to give benefit of doubt to the accused despite facts apparent on the records or on its own finding or tries without giving any reasonable explanation. So you can just have a look on that. You can just make it the point wise. One or is here. Another or is here. So it gives the different line and dimension. Another or is already here. Here another or is here. So these are the various, another or is here. So these are the various circumstances you can test in your case. Any one is applicable. Even though we have to point out, this is the point 1, 2, 3, and 4. This is the condition under which we can approach the court, or in that case, it is the duty of this court to step in and correct the legally erroneous decision of the High Court. So, certain circumstances which is narrated here, if it is available in your case, clearly we can say gross error of law and a very special circumstances, or in this circumstances, it is the duty of the court to correct it. It is the point 1. Suspicion, however, great it may be, cannot take the place of legal proof. In any condition, legal proof and suspicion का एक comparative comparison यहाँ पर दिया गया है, analytical comparison. Suspicion कितना भी बड़ा हो, कितना भी strong हो, however great it may be, cannot take the place of legal proof. Suspicion leads to moral conviction, and legal proofs leads to the proper conviction, legal conviction. So a moral conviction, however strong or genuine, cannot amount to a legal conviction supportable in law. So the basis of the moral conviction is the suspicion, and the basis of the legal conviction is the legal proof. The well-established rule of criminal jurisprudence is fouler the crime, higher the proof. Fouler the crime, higher the proof. In this instant case, this is talking about the instant case. The life and liberty of the subject was at stake,
as the accused was given a capital sentence, a very careful, cautious, and meticulous approach necessarily had to be made by the court. This is for the court itself. And the court means this court, Supreme Court. So the another point is confined to the Indian law questions nature scope. I'm not going much more deeper into them. This is section 32, which is talking about the circumstances of the transaction as a result of death. And 2.2, just I'm counting the points. So 2.2, it's a part of 2.2, 4 and 5. So 2.2 के अंदर जो प्रिंसिपल आपको याद होगा नेचर एंड स्कोप की बात हम कर रहे थे. So this is the 5 points this discussed emerges as the following. यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं. And it is discussed around, see, 1 is this, 2, 3, 4, 5, and this line. It is well settled that the prosecution must fall and such and such, such and such. यहाँ से है. Additional link is this. Yes. Third point is this additional link. Sorry. Before a case against an accused wasting on the circumstantial evidence can be said to be fully established, the following condition must be fulfilled as laid down in the Hanuman's versus the state of MP 1953 SCR 1091. And what is this? Fully establish the following conditions. This is the conditions. And that condition is, that is the 5 points is again explained. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The fact so established should be consistent with the hypothesis of the guilt and the accused. That is to say, they should not be explained. And finally, it says, आप उसको देख लीजिए, I'm not going into them. So, this is called these 5 golden principles constitutes the punch seal of the proof of a case based on circumstantial evidence, and in the absence of corpus delicti. आप इसको भी नोट कीजिए और इसका मतलब भी अलग कर लीजिए. लीगल मैक्सिम में से एक है. And what is the source of all these principles? It was let down into the Hanuman versus the state of Madhya Pradesh and repeated into so many places. This is the outcome from 1952 only. This principle was let down and inherited here. And these are the things you are looking here. These are the 5 things. 3.3 and 3.2 is this. And 3.1 is this. So all are concerned to the part of 3 only. This is up to the 2. 2 was the principles as well as the applications regarding the circumstantial evidence. So 3.5, 3.6, all are, they put it into the box of 3 only. Now the 4.1 is started. And similarly, how many points are there? 6.
So 6 points are there. We also counted almost the 6 only. This is the 6. Just give me 1 minute. So this is the Sharad Birdi. What left? The fact. What was the fact behind that? So this is the time of the 6:17. We took around 1 hour to discuss till the time. And you can pay the additional 1 hour to reorganize it, or more than again 1 hour for the reconcile it. Then after that, this judgment is yours. Whatever circumstances is there, I'm just coming to the another part of this particular judgment were what I left very deliberately on the name of the fact. And that is this one. Started from here. The appellant Rameswar such and such, such and such, such and such, up to this particular part. This is, if you will read differently, you will find out this is a very good question, clear-cut question of drafting. If someone will give you the fact from here up to here, and finally will say draft an SLP, this is a very good case for the circumstantial evidence. And what should be their ground and all, you can find out from there. So what I am discussing today through this Sharad Birdi, not only the leading cases, but also the drafting. I given you the question to draft an SLP. And I'll given you the answer also. So this is a take home exercise. Expend 3 hours to understand the entire case. I'll give you not half an hour extra, 3 hours extra, even 5 or 6 hours one. I'll give you 6 hours for to understand the entire thing, and then draft an SLP. This is called reusability of the same thing. एक जजमेंट एक के लिए नहीं, और अदरवाइज भी यदि दोनों एक साथ डील किया जाए तो 25 नंबर की ड्राफ्टिंग और 20 नंबर का लीडिंग केसेस, 45 मार्क्स वी डेल्ट विद टुडे. नाउ योर टर्न्स, एंड आई हैव डन फॉर द डे. डिस्कशन पे आते हैं. सर, इतना साइलेंस क्यों है भाई? लेकिन सर जो तेज प्रताप पाठक वाला जजमेंट है उसमें तो डिफरेंट कुछ नहीं पता चलता, क्या है, क्या फैक्ट है, क्या इशू था. और एक जो बीकेएस वाला है, प्रॉपर्टी ओनर्स वाला जो जजमेंट है जो एडेड हुआ है, नहीं, जिसका पता चलेगा ना सर, वो खुद चल करके तो आएगा नहीं, किसका पता ही है. जी पता तो हमको लगाना है, पहली बात.
और दूसरी बात, जिसके नॉलेज में ये सारी बातें नहीं रहेगी, पता लगाने के लिए कुछ तो बैकग्राउंड हो। आपको यदि कहीं भेजा जाए कई नई जगहों पे, तो कुछ तो ब्रीफ करके बैकग्राउंड के साथ भेजा जाएगा कि ऐसे क्लू होगा, वैसे क्लू होगा, और ऐसे पता लगाना है। आपके एमपी में मुझे भेज दिया जाए, मुझे आपके जगह पे भेज दिया जाए, तब भी दिमाग लगानी पड़ेगी। बट एक एलियन को कहीं भी भेज दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो बहुत सारे नीचे से उसको करेक्शन करने की जरूरत है। वी आर वेल इक्विप्ड, we can understand so many decisions we can take ourselves, so we can find out the differences. Ahmed साहब, जी सर, प्लीज सर। कैसा था? सर बहुत अच्छा था सर। यू हैव वेल डिफाइंड दैट द प्रॉक्सिमिटी डॉक्ट्रिन सर। उसका जो है मतलब बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो प्रॉक्सिमिटी डॉक्टर पे। साहब, सर क्या क्या छूटा? कुछ भी नहीं, सब आया है। 120B का सोच रहा था मैं 302 के साथ, वो मुझे थोड़ा सा लगा, बाकी तो था उसमें सर। आईपीसी का जो 302 है सर। बंसल साहब, ए, क्या छूटा? अभी इसमें छोटा एसेस तो कुछ नहीं है, पर इसमें जो पंचशील की चेन की सर्कमस्टांसेस है वो पूरा करने के लिए हमको एक दूसरे से कोरिलेट करनी पड़ेंगी चीजें। आपने बहुत बिल्कुल अंदर अंदर जाके बहुत अंदर से डीपली बता दिया, इतना ज्यादा कि जो ऊपर की धरातल की चीजें थी वो मिस हो गई, अंदर घुस गए हम सब लोग। नहीं, मैंने किया क्या, ये तो बता दीजिए कोई। आपने अंदर से आपने क्या किया, आपने कनेक्शंस की चीजों को कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछा, हमारी वे ऑफ रीडिंग है उसको चेंज करने की कोशिश की। अरे नहीं, मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव था, इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने किया है क्या है सर? और उसको कैसे करना चाहिए आइडियली, सो दैट कि वी कैन कैप्चर इट, और एक बार करें और हमेशा के लिए करें, और कैसे करें, कहां कहां फोकस करें, कहां कहां फोकस नहीं करें, और फोकस करने के बाद क्या पोटेंशियल एंड प्रोबेबल एरिया है उसको पिकअप करें और ऑप्टिमली कंपाइल करें। अब कॉर्पस डिलिक्टी आएगा तो कॉर्पस डिलिक्टी के लिए तो एग्जैक्टली मैंने, आप एक आधे पेज का नोट्स में बनाएंगे, मुझे बस ये चाहिए आपसे, मैं ये पूछूं कि शरद बिरधी चंद का एक छोटा सा नोट बनाया जाए जिससे मेरी मेमोरी रिकॉल हो जाए, अब जहां मैं मिस कर सकता हूं, इट वुड बी द ईयर, इट वुड बी द साइटेशन नंबर, इट वुड बी द सर्टेन प्रिंसिपल्स, और इतना आपको बनाना है कि मुझे वो दिखाते ही देखते ही पूरी याद आ जाए कि ये सब चीजें ही है और सब। ये चीज इसी जजमेंट में। तो हाउ टू प्रिपेयर अ नोट्स इन वन गो and how to take a note for the recall the everything, it was the objective of this session. So that's why I left all those 120 and all others, the facts, the circumstances, the everything I left, but principles को अलग किया, facts को अलग किया, दोनों के लिए अलग एक लीडिंग केसेस आपको दे दिया। Objective was very clear. So once your objective is clear or confused, it is having the matter. If this is confused sometimes, then you can't take, or you can't land up on the with the confidence. अब मैं ये चाहता हूं कि same man should be implemented in rest of 6 days in your discussion. And notes जो रिलीज होनी चाहिए should not be more than 1 page in your own language. क्योंकि यदि मैं एक पेज इसका पहला यदि मैं प्रिंट करके आपके साथ शेयर करूं, दिस इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ माय साइड, एंड प्लीज डोंट यूज द एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दे डजंट नो व्हाट यू वांट। अभी जो हमने क्लासिफाई किया है
और जो पॉइंट्स पिकअप किए हैं ये पूरी रिव्यू हमने की है, आपके सामने की है, रेंडमली की है, It was natural. which must be done by you, क्योंकि जो करेगा वो सीखेगा। यदि ये एक्सरसाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो वो सीखेगा, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से एनालिसिस के अंदर एंटर कर जाए। उसका एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सोचेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा इस तरह से पिकअप करने के लिए। एंड आई डोंट वांट टू इक्विप देम लाइक दिस। This is my or yours uniqueness. No one, even another human beings cannot adopt it. It was the procedure, it was the steps, it was the demonstration. To read a particular judgment and collect the data for the purpose of recalling, or even the clue, if you will find somewhere from question कि ये word आ गया, वो लीगल फ्रेज आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी आ गया, आपको सीधा सटाक से हिट करेगा कि यहाँ पर है, और वो वाला पेज खोल करके भूल भी गए हैं तो आप निकाल लीजिए, आपके पास हेड नोट्स होता है। That's what I trained for this purpose and these days. Without doing this 1 and 2 hours exercise, you are not going to take help of that head notes during the examination. You also need to think how to take the advantage of that. So आप फायदा उसी में ले सकते हैं जहां आपने एक्सरसाइज कर रखा है। सिर्फ एक पेज का डिटेल्ड एक्सरसाइज करने के बाद आप किसी भी जजमेंट का आप फायदा ले सकते हैं। ये क्लियर है, हेड नोट्स का फायदा ले सकते हैं, ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पहले कहाँ है, क्या कहाँ है, कैसे क्या लेना है। नाउ गो एंड रीड इट अकॉर्डिंगली एंड रीड इट अगेन। अब मैं आप लोगों को रीड करने के लिए क्यों कहूँ, आपने तो पढ़ रखा है ऑलरेडी। मैं ये कहूं कि रिविजिट करें वापस, इस एंगल से रिविजिट करें और इस ऑब्जेक्टिव के साथ रिविजिट करें, और एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव को लेकर के बाहर है। फिर देखिए शरद बिरदी चंद का क्वेश्चन आता है और नहीं कैसे बनता है, एंड देन गो इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको मैं बताऊं कि मोर देन 5 इंस्टांसेस मिलेंगे जहां पर शरद बिरदी चंद आया हुआ। दिस इज सो इंपॉर्टेंट केस। आप जरा इमेजिन कीजिए कि जितने भी ट्रायल होते हैं 90% ट्रायल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ही, किसमें वो मैंने आई विटनेस मिलता है, मर्डर होते हुए देखने वाला एविडेंस कितने टर्न आउट होते हैं, और कहां इंटरेस्टेड विटनेस का प्ली हम नहीं लेते हैं। दिस इज द बैकबोन ऑफ द इंटायर क्रिमिनल ट्रायल। कितना गलत होगा ये कहना। आपके लाइफ में जितने भी क्रिमिनल केसेस आपके सामने आएंगे, ऑलमोस्ट 90% में इसकी जरूरत पड़ेगी। इवन क्लाइंट से बात करने के लिए जरूरत पड़ेगी, कब आपका पेन चलना चाहिए, कब सर्कमस्टेंशियल, ये दीज आर द एक्सपर्ट व्यू व्हिच यू कैन एक्सप्रेस टू द लॉयर ऑफ हाई कोर्ट, जिनकी 20-25 साल की प्रैक्टिस हो गई है, एंड यू कैन इम्प्रेस देम ऑन दैट लाइन। अजय जी, am I right or wrong? Right, sir. But the question is कि आप ईमानदारी से उसकी एनालिसिस तो करें पहले। ये पेज, एक पेज तो सारे जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बना करके रखा हुआ है, टेक इट, बट ऑल्सो पुट योर ओन नोट्स, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, सो दैट कि मेरी तरह बेवकूफ ना बने, लोग मांगे कि सर अपना नोट्स दे दो, तो कुछ तो हो आपको देने के लिए। मैं नहीं दे पाता हूं, मैंने बनाया ही नहीं। आप लोग पक्का बनाइए, इट विल एट्रीब्यूट इन योर कॉन्फिडेंस। मैं इधर सोचने में ही बिजी रह गया।
जो मैंने कलेक्ट किया on that point of time, that is only sharing. So it was my objective for the day, and I think I have done for the day. So let us enter into the discussion. इसमें सर क्या है, एक्चुअली में मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था। बंसल साहब ने कुछ एक बहुत डीप क्वेरी रेज करी थी, तो इसमें सर एक्चुअली में क्या है कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो तो हर केस के कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट सर इसका एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 जो है उसको गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि सर एक ऐसा केस मैंने डील कर रहा था जिसमें एक न्यू चीज आई थी। जज ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट कर रहा था कि जो चीज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, व्हाई यू आर मूविंग एन एप्लीकेशन टू प्रूव द सेम। ये एक जनरल बात बता रहा हूँ सर, इस केस से रिलेटेड नहीं है। तो द थिंग विच जुडिशियली नोटिसेबल, जैसे कोई जजमेंट होती है और कोर्ट खुद फाइंड आउट करती है और प्रोसिक्यूशन भी फेल हो जाती है उसको प्रूव करने में और एक्यूज भी उसका रिबटल नहीं लेता, तो कोर्ट कैन अपॉन इट्स ओन जुडिशियल नोटिस कैन टेक दैट एविडेंस इनटू कंसिडरेशन। तो सर इसमें डिस्कस नहीं हुआ, बट ये है कि हमें ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि दैट कोर्ट्स की पावर क्या है, इसलिए पार्ट 2 का पढ़ना जरूरी है। एविडेंस एक्ट में जो चीजें जो अब आपने प्रॉक्सिमिटी का डिस्कस करा, तो इट आल्सो रिलेट टू द प्रॉक्सिमिटी, और जो रीजनेबल डाउट आपने जो बताया कि मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट अगर तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मोहम्मद साहब, हाँ प्लीज सर। विथ फुल ऑफ डेलिब्रेशन मैंने कुछ चीज डिस्कस की और बहुत कुछ चीज छोड़ दिया, आपके सामने स्किप किया हुए, isn't it? And then I asked the same question from you, does this completed what I want to expect? The question is, everything cannot be discussed on board here, right? यदि किसी को ग्राउंड में उतर करके क्रिकेट खेलना है तो उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा फिटनेस, थोड़ा कुछ न कुछ तो हर इंसान को करना ही पड़ेगा। और if someone is not doing like that, they does not deserve to come into the field. It's abuse of the field. तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना वो सबको करनी ही पड़ेगी, आप माइंड मेकअप कर लीजिए। एवरीवन हैज टू डू, एटलीस्ट रीड इट, एटलीस्ट एनालाइज इट। और उसमें भी दो पार्ट है, वन इज द फैक्चुअल पार्ट और दूसरा मेमोराइज, मतलब मेमोरी में रखने के लिए टेकिंग अ क्लू। और तीसरा पार्ट है एग्जैक्ट रेशियो लॉ विच इज जनरल इन नेचर, फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस, जनरल इन नेचर। इन सब का डिस्टिंक्शन मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। How this is connected with its own source, that is the law. Either maybe 136 or maybe this, and what is the recalling factor is the benefit of doubt or circumstantial evidence or nature, scope, and like that, doctrine of proximity and all. I just focus on that particular part. What was the content into them? I don't know. I discussed regarding the 136 only. Rest thing why I left. क्यों नहीं मैं चम्मच से लूं, उसका मुंह को खोलूं, उसके अंदर डालूं और उसको किसी भी तरह लकड़ी से अंदर कर दूं। गाय को जैसे दवाई दिया जाता है इतना बांस वाले उसमें डाल करके गर्दन ऊपर करके डाला। Why should I do that? Does this required? No. You are in the field. You have to demonstrate, coordinate with each other. If you are feeling something left, need to explain. If you are feeling someone is explained, no need to repeat it again. Be sensible in the group discussion. It's a teamwork. Highlight something, whatever is the missing. Watch everyone on each other so that optimal can be performed by way of coordination. ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं हम पहुंच गए, हमने कुछ पढ़ाई नहीं हम पहुंच गए, हम भी वही बोले जा रहे हैं जो सब में बोले जा रहे हैं।
It's not like this. It is can't be lead to the excellence. Excellence and full of responsibility cannot be divorced to each other. If this is the divorced, no child will born whose name is the excellence. सर 2025 का जो पैटर्न आया ना, 2025 का जो पैटर्न, मैं उस पे नहीं हूं, मैं उस पे हूं कि ग्रुप मेंबर्स कृपया ध्यान दें कैसे ग्रुप चलाना है, किसका क्या रोल है। ये ग्रुप एडमिन के लिए नहीं, ग्रुप मेंबर्स के लिए है। और जो ग्रुप मेंबर्स नहीं है वो वन मैन ग्रुप इटसेल्फ है। either collectively or in isolation, how you will lead to the excellence, it's important. This is an example, this was a demonstration which you have to demonstrate on all the 86 cases if you want. Then you are thereafter you would be able to connect the connection among two cases. सही बोल रहे हैं ना? कैमरा ऑन किए बहुत देर बाद दिखाई दे गए आप। सही सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बहुत फैंटास्टिक वे में आज। क्या आज का सेशन भी रिपीटेड था या कुछ अलग लगा? एकदम एंटायरली अलग था सर, इसको कई बार पढ़ने के बावजूद भी आज नया फ्लेवर के महाराज साथ। आप जब आ जाते हैं तो अलग हो ही जाता है। नहीं नहीं सर, मैं कई सेशन कई बार इसको अटेंड किया हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आज बहुत दिन में आपने सेपरेट हो किया सर, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूँ आप हर बार आ जाते हैं इसीलिए स्पेशल हो जाता है। हाँ ओम प्रकाश जी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये समझा दिया, हमें ये मालूम होना चाहिए सब केस में ये कौन सा सेक्शन यूज किया गया, एविडेंस का कौन सा सेक्शन यूज किया है और आर्टिकल कौन सा ओम प्रकाश जी हमने जो बतलाया इतना यदि कहीं से कलेक्ट कर लें तो क्या बचेगा। हाँ, और बस उसमें हमें रिलाई कौन से केस पे वो हुआ जो लीडिंग जजमेंट्स हैं तो उन्हें देखेंगे वो सब कुछ पेशेंटली देखिए हमने पेशेंटली 1 घंटा इस पे स्पेंड किया, आप ऑनेस्टली एंड पेशेंटली 3 घंटा एक्सपेंड करें, जजमेंट खत्म। तो उसमें जो बचता ही नहीं है, फिर हर बार रिवीजन के लिए 10 मिनट चाहिए बस। जो 25 में भी पेपर सेट किया था, अगर हम इन सब चीजों को करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ये सब अगर इनको इस उसमें जजमेंट में है डॉक्टर प्रोफेशनली क्या है, एविडेंस का कौन सा सेक्शन यूज किया, कहने का मतलब यह है कि हम अपनी तरफ देखें, अपने एंड पे देखें तो हम अपने ट्रेनिंग में अपने खुद का ट्रेनर भी हैं और ट्रेनिंग भी खुद ही कर रहे हैं। ये जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, इसमें हम कहाँ कमी रख रहे हैं बाय एनी रीजन और कहाँ हमको ग्रो करना है, क्योंकि अनलेस अंटिल वी विल नॉट कंट्रोल दिस पार्ट, कितना भी कुछ कर लिए नहीं आगे होने जा रहा। हमको नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां क्या है नहीं है, बस एवरीवन हैज टू फोकस देयर ओन पैटर्न। आप अपने लिए अपना स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि हमको जजमेंट पढ़ते समय चाहे दुनिया का कोई जजमेंट पढ़े, अपनी आदत में इससे ज्यादा जितना भी है, कितना भी पूजा करने के लिए बैठिए गोर हाथ तो धोबे कीजिएगा ना, कम से कम शुद्धि का तो ख्याल कीजिएगा। ये तो यही तो शुद्धि है, उसके बिना आप कैसे जाकर के बैठ जाइएगा बताइए। खाना खा रहे हैं और आधा जूठे हाथे लेकर के फिर पूजा करने के लिए अगरबत्ती घुमाने लगिएगा। यदि किसी को देख लीजिए तो खून पी जाइएगा, चाहे कोई भी धर्म हो। मुझे ये प्रिपरेशन धर्म का ये मिनिमम तरीका था जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस श्योर मैम। सर ये हम लोग 1 पेज नोट तो 86 जजमेंट्स का बनाएंगे, लेकिन अभी जो पैटर्न आ रहा है उसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, रिलेटेडनेस बिटवीन you have to link different judgments, how to attempt a question like that. एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन वो बाकी से लिंक करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाना, इस थोड़ा उसमें गाइडेंस दीजिए सर। मैं आपको ये बताऊं हमने क्या किया है, फॉर योर कन्वीनियंस
और बहुत ज्यादा एनर्जी पुट करना पड़े, उसके लिए कैटेगराइज करके रखा हुआ है कि ये केस इस केस से कनेक्शन है, ये केस इस केस से कनेक्शन है, और उसकी लिस्ट Right, sir. ग्रुप पे रन कर रही है। ऑलरेडी इट जी इज सर. कैटेगराइज। सो आप जब भी ले तो इन क्यू, यदि पहला जजमेंट आप पढ़ें विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डेवलप्ड बाय द जजमेंट, दो वे है। Either you can read the first one, then second one, then third one, meaning thereby the oldest one, then another after the, you know, थोड़ा younger and थोड़ा younger करके, या फिर आप उस सीरीज का लास्ट जजमेंट आप पढ़ लीजिए जो मोस्ट यंगेस्ट है, सबसे शैतान। उसके अंदर वो पूरे प्रीवियस डिस्कशन तो ऑलरेडी होते हैं, समरी ही डिस्कस होते हैं ना मैम। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे लीडिंग केसेस में मोर देन 20 केसेस ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की तरफ लीड करते हैं। बट एक जजमेंट यदि आप पढ़ लें, आपकी पूरी बेसिक जजमेंट की क्लैरिटी आ जाएगी। वो है आईआर फॉलो, कंप्लीटली इंक्लूडिंग द हेड नोट्स, इट इज गोइंग अप टू द 64 पेज, ओनली वन जजमेंट। Right, sir. द पॉइंट इज, मतलब हमारे बॉस और हमारे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया, वो ये सिखाया था कि आप सिर्फ लेटेस्ट जजमेंट को पिकअप करो, उसके अंदर वो पूरा चीज डिस्कस होगा इंसेप्शन से। अभी देखिए 52 का फजल हनुमंत का केस है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस हनुमंत। वी आर इन 84 में ये रिपीट हुआ है, और आज के डेट में भी सर्कमटेंशियल एविडेंस पर यदि कुछ जजमेंट होगा, उसमें हनुमंत के बगैर कैसे निकलेगा? और उसमें हनुमंत और 84 का दोनों की चर्चा होते हुए निकलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. एंड दूसरी बात यह है कि वंस यू विल रीड आइसोलेटली टू डिफरेंट थिंग्स, देन यू आर एबल टू कंपेयर योरसेल्फ। आपके पास जब आपके जो छोटे से नोट्स बनाने की जो डिस्कशन की बात जो हमने अभी की, हाफ पेज या 1 पेज का, व्हिच वुड बी योर ओन टू रिकॉल योर ऑल द मेमोरीज। यदि मान लीजिए कि एक पेज हमने डिस्कस किया पहले और दूसरा केस हमने डिस्कस किया लेटर ऑन, तो दोनों जैसे ही हम दूसरा केस डेवलप करेंगे, उसको बनाने का जो स्पीड है ना, वो अपने आप रेज करेगा और आपको रिकॉल करेगा, अरे ये तो वहां हमने डिस्कस किया था। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. And the next case will probably expand the previous case also. ऑब्वियसली, तो थोड़ा जी सा वो सर. एक्सपेंशन भी है, टाइम भी है, दिमाग अपने आप रन करेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स एक्सीलेंस, जी सर. द वे टू एक्सीलेंस, है ना? Right. तो एकदम मिनिमम मेमोरी रिकॉल करने के लिए बहुत सारा क्लू की जरूरत नहीं है। 64 पेजेस, 70 पेजेस, 80 पेजेस के नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वन वर्ड शुड बी सफिशिएंट टू रिकॉल इट। एक्सपेंडिंग इज नॉट द चैलेंज। Right, sir. उसको प्रिसाइज करना, इट इज एन चैलेंज। मिनिमाइज करना, सिंगल वर्ड तक ले जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज। So this is all about the matter of your own experience to prepare for the during the preparation. अपने आप वो रिकॉल करेगा, कनेक्ट करेगा, योर ओन एक्सपीरियंस विल वर्क। Right. Yes, sir. Thank you. And very thank you to you for the posing a question. मैं इसका इंतजार करता हूं बड़ा बेसब्री से, बट नो वन इज आस्किंग द क्वेश्चन। That's why I am touching to A, B and C कि प्लीज आप कुछ बोलो और आप कुछ बोलो। दरअसल जब मैं थक जाता हूँ तो थोड़ी देर पॉज की रिक्वायरमेंट होती है ना। जी सर. थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? अब तो राय ज्यादा साहब को ही छेड़ना पड़ेगा। हेलो सर. हाँ प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। कोई सवाल हो तो प्लीज। नहीं सर. डॉक्टर साहब? सर,
आई होप कि आपके ग्रुप डिस्कशन में कुछ और डायमेंशन पकड़ेगा, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत होगा, बहुत अच्छा सर। ये जो आपने 7 सेक्शन एविडेंस के इसके साथ जोड़े सर। अरे सर एविडेंस के साथ सेक्शन नहीं जुड़े आप, एविडेंस वाज एन एग्जांपल जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया, मेरे लिए तो वो एक केस था। हमने वो मैकेनिज्म आपको दिया कि कैसे पकड़ते हैं सर आप कोई भी जजमेंट को। क्या कह रहा हूँ सर, काइंडली लिसन टू मी। द मोड की एक केस आ गया। अजय जी, योर रिमार्क इज द मोर वैल्यूएबल फॉर मी, प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, वो पूरा होने देते हैं सर। हाँ प्लीज। मैं केवल ये कह रहा था कि ये जो चीज आज डिस्कस हुई है ना सर, ये हमारे जो हमने केसेस लिखे हैं, हमने लगभग 50 के आसपास केस लिख रहे हैं, तो उसमें हर एक को एलिब्रेट, हर एक का एनालिसिस करके सर ये वाले इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे सर हम, और ये बिगनिंग में करेंगे और इसको हाईलाइट करके रखेंगे। जैसे आज आपने आई एम सॉरी, इट इज अ patentable for this group only. that is under section 3. How you can't take away without the permission? This We is are part intellectual and parcel. property. We are part and parcel of this group, sir. Never forget that it is. So whatever is authoring you, it would be the dedicated to the group, right? Copyright is a different thing, sir. And ideas are never copyrighted. It's not an idea. It's exercising is going on. So implementation is on the way. Not is confined to the idea. चलिए सर, आपकी बात लेकिन हम अपना कुछ नया बना के इसमें डालेंगे सर। चलिए ठीक है, कीप कंटिन्यू। जस्ट ऑन द नोटर पार्ट नाउ। अजय जी प्लीज। नहीं सर, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे अपना नंबर प्लीज हमको दे दीजिएगा, उस ग्रुप में ऐड होना है। कई बार हम लोग देते हैं नंबर, कई बार कह देते हैं। चलिए अभी दे देते हैं थोड़ी देर में। यस अजय सर कुछ कह रहे थे सर। अजय जी सर, how is your assessment regarding today's session? Sir, assessment is good. The basic requirement for reading a leading case वो यहाँ पर पूरी हो जाती है, बट जैसा सेक्शंस जो आ रहे हैं, एविडेंस एक्ट का क्या सेक्शन है, सीआरपीसी आईपीसी का सेक्शन 300 मर्डर की डेफिनेशन वो बता रहा था, तो वी शुड आल्सो गो बिहाइंड दैट। Of course. उनको आप फर्दर It was very deliberate that I already explained. Yes sir. But मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट पे था कि how to approach it. We certainly enter into them. It was the it one is of a the preface. exercise. It is a beautiful preface and आपने जो तरीका बताया है how to go about it, it is एक काम को आसान कर देता है। हाँ, माइंड में एक मैप बनाने के लिए। So once someone will go on this particular line and पहले से पढ़ लें, समझ लें थोड़ा सा, then I will enter into the entire thing. तो मुझे इन सारी चीजों को ब्रेक करने की बजाय one go start and finish में करूंगा और सब कुछ को लेकर के मैं करूंगा and conclude कर लूंगा। Right. So for the purpose of time optimization and the understanding for everyone, ये एक्सरसाइज यदि हो जाए उसके शुरू होने से पहले, यानी नेक्स्ट टाइम से यदि मैं ये फ्लोट कर दूं कि ये जजमेंट होने जा रहा है, प्लीज डू योर ओन एक्सरसाइज एंड देन आई विल स्टार्ट एंड फिनिश देम, देन इट वुड बी मोर फ्रूटफुल. It was the idea, so that purpose I inserted into them, and it wasn't the experimental thing. हाँ अजय जी प्लीज, मैंने आपको बीच में रोका, कंटिन्यू। नहीं सर, इतना ही बताना था that it is a good preface, but सर अगर आप अगर प्लान कर रहे हैं कि जजमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे तो एवरी सैटरडे के हिसाब से तो 86 जजमेंट्स नहीं हो पाएंगे। नहीं, आइडिया ये है ना अजय जी कि सी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 3 सेशन, दिस इज गोइंग टू बी द 4th, लास्ट मोमेंट में जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है, एवरीवन इज रशिंग अप कि मुझे अब तुरंत का तुरंत सब कुछ। राइट सर। और रिपीट करो, इसको रिपीट करो, उसको रिपीट करो। मेरा कंसर्न ये है कि whoever is the continued right sir throughout the year, उनका थॉट प्रोसेस भी कल्टीवेट हो, क्योंकि 3 घंटे में आप थॉट प्रोसेस कल्टीवेट नहीं कर सकते। उस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए एक ब्रीफ मतलब सब्जेक्ट सेंट्रिक आप कुछ कर सकते हैं।
ये जो है ना कल्चरल डिफरेंसेस सेंट्रिक है, जहां पर लोग अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, चेंज करते हैं, कन्विंस करते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और इसके बाद जब वो एक्सरसाइज होगा जो अल्टीमेटली होना ही है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म एंड आफ्टर द डिस्कशन, 2 पार्ट तो होना ही होना है, उसमें हम फुल स्पीड से जाएंगे, वहां कंटेंट भी जाएंगे। तो वहां पर उस मोमेंट पे जब मैं स्पीड पे होऊंगा तो हमारे ये पूरी टीम शुड नॉट सफर। राइट सर। तो अपना करेक्शन 1 बाय 1 वेल विद इन टाइम कर लेते हैं। और यदि आप कहेंगे तो वो भी डेमो में दूंगा, चाहे ट्राइब्यूनलाइजेशन हो या फिर ये हो। 1 गो में यदि हमने ये कहा इसका ये एक्सटेंशन है और वो चीज है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है एंड ग्रोइंग पार्ट है, उसको कनेक्ट करना इट्स नॉट मच डिफिकल्ट एंड इट वुड बी इन 1 गो, एंड 2 आवर का सेशन इज मोर देन सफिशिएंट। इवन बेसिक स्ट्रक्चर वी कैन कवर। राइट इवन द मतलब आर्टिकल 21 के जो दोनों फेसेट है, पुट्टास्वामी एक साइड एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड लाइफ एंड लिबर्टी इज डिस्कस्ड बाय मनेका लिबर्टी इज द गांधी। पार्ट ऑफ दिस मनेका पुट्टास्वामी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द मनेका गांधी। दोनों एक डिफरेंट स्ट्रीम और प्लस बेसिक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना, वो भी मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, पिकिंग अप द एवरीथिंग। बट द थिंग्स इज, मजा तब आएगा ना जब एक एक्सपर्ट स्टेडियम में बैठ करके ये भी देखे, अच्छा ये कट लगाया, वाह कितना अच्छा इंस्टांस है, कितना अच्छा कट है, कितनी अच्छी टाइमिंग है, तो थोड़ा मजा आ जाए और वो सब कुछ दिखे क्लियरली। फॉर दैट पर्पस इस तरीके की एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, which is automatically and obviously being done into the group. So group centric discussion आज को कह सकते हैं आप। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स कि कैसे, क्योंकि हमने कई बार रीजन बोला, ये बोला, वो बोला, सेम चीज को फोकस कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये चीज कहीं ना कहीं ब्रेन में आ रहा है और कारपोरेट हो रहा है इन अ कल्चर, इन अ हैबिट। वो एक बार हो जाए तो हमारे लिए काम आसान होगा और हमारे ग्रुप के कोई भी मेंबर्स रुकेंगे भी। राइट सर। That's the objective. And That's the objective. and the changing dynamics of the examination process, I believe, इसके साथ साथ people would be required to go a little more deep, थोड़ा सा जजमेंट की तरफ। This is हाँ, मैं एक लाइन और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस चीज को। यदि किसी बच्चे को कहानी कहो तो बच्चा हमेशा कहता है उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। सो दिस इज द क्यूरियोसिटी। राइट सर। उस क्यूरियोसिटी को मैं टच करना ही नहीं चाहता, राइट मैं छोड़ दूंगा, ताकि जब भी आप मुझे देखो तो याद रहे कि आपको इसके बाद क्या है, ये आदमी बताएगा आकर। बट some mature person will learn the moral of that story, राइट सर। है ना। और हमने इस सेशन के थ्रू मोरल पे शिफ्ट करने की कोशिश की है, बट द डिमांड इज कमिंग टुवर्ड्स इसके बाद। राइट सर। So a clear distinction between them, the moral and the fact. So exercise जो हमने किया है, how to reach on the moral, ये है मोरल इस पूरी एक्सरसाइज का। और कंटेंट में मैंने डेलिबरेटली उसको अवॉइड किया है। अभी भी 1 घंटा बचा हुआ था, आई कैन डू दैट, बट आई डोंट, क्योंकि मैं वो छोड़ूंगा वो क्यूरियोसिटी आपके लिए, मतलब बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, सो दैट दे विल गो एंड डू दैट। राइट सर। एक सब्सटेंशियल क्यूरियोसिटी लेवल पर ले जा करके उसके बाद छोड़ दे। वो टॉम एंड जेरी में देखते हैं ना कि इस तरह से छुपाता रहता है और वो दूसरा परेशान होता रहता है, तो सम सॉर्ट ऑफ दिस टेक्निक इज गोइंग ऑन, सब प्ले टॉम एंड जेरी गोइंग ऑन। राइट सर। बंसल साहब कुछ शेयर करें। बंसल साहब प्लीज। मैं इसमें कल शेयर करूं चलेगा, मतलब कल से नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा करो करो पूरा करो। If someone want to मतलब you know address the curiosity part, even content part, can do that, please. पीपी साहब, सिद्धू सर।
हकीकत ये है कि मैं इन लोगों को सुन ही नहीं पाता हूँ। जो बाकी लोग उस ग्रुप में डिस्कशन पे होते हैं, बहुत मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी आया ही नहीं है। आई एम डिप्राइव्ड। सर क्लास को प्रतिदिन करिए। वही तो संभव नहीं है भाई। 5 से 6 हो सकता है ना सर प्रतिदिन। 5 से 6 प्रतिदिन चल ही रहा है। अरे तो प्रतिदिन आप तो पार्टिसिपेट करते हैं ना पटेल साहब उसमें। अरे सब यहाँ भेदभाव करते हैं सर, मोर तो डिस्क्रिमिनेशन। बस अब हो गया, हो तो गया। नहीं मुझे ठीक है, मुझे प्रतिदिन क्लास चाहिए। एन केन प्रकारेण कार्य सिद्धम। हाँ तो कार्य सिद्धि में आप एन केन प्रकारेण लगे रहिए। मैंने डिस्टरबेंस नहीं किया है। कुड़म ऑलरेडी है, मंदिर है, वहां जाइए, पूजा कीजिए, जो चल रहा है डेली। मैंने 2-3 बार आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। अब नारियल लेक फोड़ना बाकी रह गया है। वो डालिए। हाँ बस मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। हम ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम नाथ साहब, आपको भी ऐड कर लेते हैं। आप मैं नाथ साहब को एक बात बता दूं कि कुंभ का मेला रोज रोज नहीं आता है। 12 साल के बाद आता है। किसी के अपने नहीं 12 साल के बाद नहीं, अपने समय से ही आता है। अच्छा, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। पटेल साहब को पटेल साहब किसी के सर पे ना फोड़ दें बस। नहीं नारियल वहां मत फोड़ दीजिएगा आप, जो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है अजय जी, कहीं अपने सर पे ना फोड़ लें। ये इंसान मुझे सेशन अलाउ नहीं कर रहा है। ये लो सर। वो बहुत गंभीर है। अगर वो सर कह रहे हैं 5 से 6 क्लास, तो गंभीरता उनमें है सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी गंभीरता पे डाउट नहीं कर रहा हूँ सर। नारियल सिर पे नहीं फिर साहब फोड़ेंगे भी समझ रहे हैं बात को। सर, सिर और पे नहीं। आई गेस कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पटेल सर कितने सीरियस हैं किसी भी मामले में। आई नो दैट। आई नो हिम वेरी पर्सनली सिंस लॉन्ग बैक। क्या पटेल साहब सही बोला ना? जी 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 बढ़िया। नहीं, अभी राजद से भी कह रहे थे सत्यजीत साहब, उनको भी बात करते हैं, सब देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देयर आर सर 2 थिंग्स। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो यही कह रहे थे कि आजकल क्या करते हैं ये, जो पिछले साल से पैटर्न बना दिया कि वो श्रेया सिंगल भी जोड़ देता उसी क्वेश्चन में, उसी में ही वो पुट्टा स्वामी भी जोड़ देगा। तो वो थोड़ा आपने बात, उसका जवाब बड़ा बेहतरीन दिया था। उसमें अंडरलाइन जो वर्ड था वो यही था कि आप दोनों को पढ़िए, और उसके बाद जब आपके सामने कंपैरिजन खुद ब खुद आ जाएगा, और दोनों एक ही कॉज के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए फ्रीडम के लिए, तो वो भी आ जाएगा। इस साल 2025 में उसने यही सवाल पूछा था। मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सर, सा ये रॉन्ग ट्रैक है जो मैं नहीं चाहता हूं। रॉन्ग ट्रैक ये है कि नाउ ड्यूरिंग योर ओन प्रिपरेशन व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस एंड देयर ओन माइंड। तो क्या करें सर, पिछले साल आप अपनी तैयारी तो पूरी करें पहले। सर हम सिलेक्टिव तैयारी, यदि हम एग्जामिनर की बात करते हैं, आप जरा To समझिए। my mind, this is not a wrong question, sir. This is a right question. सर आप समझिए द डिफरेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आई एम नॉट एक्यूजिंग यू। Yes, sir. यदि मैं किसी भी एग्जाम के पैटर्न को देखूं, मेरा फोकस सेलेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम सेंट्रिक और एग्जामिनर का जो माइंड सेट है उसका सेंट्रिक। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन, वही चीज हम पिक करेंगे हर क्वेश्चन से। ठीक है। और चूंकि एक ब्रॉडर सेंस में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किसी का माइंड, हो सकता है वो जिसका माइंड सेट आप रीड कर रहे हो वही चेंज हो जाए। सही आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे बेटर ये है कि सामने वाला हमारे प्रिपरेशन को क्यों कंट्रोल करे, सिलेबस क्यों नहीं करे। सिलेबस से क्या पिकअप करना है, यदि वो आपने पिकअप कर लिया तो सामने वाला कुछ भी पूछे ऑटोमेटिकली वहां मैप है। यू आर नॉट ब्लैंक, you are not helpless, you are not clueless. The point is, once we are trying to match their own thought process,
then certainly we are focused on the selection, or something is going to be loose. Yes, so many things is going to be loose. हमारे फोकस में आएगा ही नहीं, वो स्किप कर जाएगा. हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते समय कभी भी ये नहीं कहा कि ये एग्जामिनर या वो एग्जामिनर या ये क्वेश्चन या ये कोट और ये मैटर और वो मैटर. Every possible things, whatever is the diamond and gold is available in that judgment, we just picked up. ठीक है सर. As in when will required, we will expend it. खर्चेंगे हम उसी हिसाब से. अब हमारा कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस में डिफरेंस यहां पर आएगा कि यदि आप सेलेक्टिव वे में जाएंगे तो आप हमेशा एक डरे हुए बैकफुट पे रहेंगे कि यदि वो सवाल आ गया तो हम कर लेंगे, और यदि वो नहीं आया तो अब आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि सामने वाला अब कौन सा टर्न लेने जा रहा है, सामने वाला अब कौन टर्न लेते जा रहा है. तो लीड हमेशा सामने वाले के हाथ में. यदि हमने इस तरह से सब कुछ पिकअप कर लिया है, अब सीना तान के खड़ा है कि आओ तुम किधर से भी आओ, आई विल एड्रेस यू. Certainly I will give you the proper treatment in any manner, कैसे भी हो. बाकी तो मेरा दिमाग है, हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है, ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना, वैसे सिचुएशन में वैसे रिएक्ट करना. तू बात से आओगे तो बात, लात से आओगे तो लात. Tit for tat. So you are not the clueless. So your own training and preparation should not be centric something. It should be complete, exhaustive. It is the thinking process which certainly lead your entire preparation. आप ये टेस्ट कर लीजिए ना, टेस्ट कर लीजिए. आप इस तरीके से पिकअप किया 1 घंटे में, वट एवर यू वॉन्ट, पिक्ड अप. एंड नाउ पिछले 15 साल की उनकी पूरी माइंड को आप देख लीजिए कि शरद बिरदी चंद से कितने क्वेश्चंस कहां कहां किस फॉर्म में उन्होंने शूट किए हैं, और किस क्वेश्चंस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. आप देख लीजिए, क्या कोई क्वेश्चन छूट रहा है आपकी इस प्रिपरेशन के बाद? Certainly answer will come no. आपका 1 साल का भी क्वेश्चन जो शरद बिरदी चंद से रिलेटेड हो, आइदर इन पेपर 1 और इन पेपर 2 और इन पेपर 4, कहीं भी छूट जाए, even this technique will apply for the entire exam to understand everything. कहीं भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन यदि छूट जाए, then there is a need to correction into them. फर्स्ट आप टेस्ट तो कीजिए, तब पता चलेगा ना कि करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है. इसमें जब हमने पूरी हेड नोट्स की तरफ लीड किया, क्या चीज छोड़ा? Entire from up to down, all the head notes prepared by the Supreme Court I completed. मैंने अपने हिसाब से आज के डेट का फोकस हमने अलग किया, कंटेंट पूरे छोड़े, प्रोसीजर्स पे मैंने फोकस किया. बट प्रोसीजरल पार्ट पे समथिंग आई लेफ्ट. द आंसर इज नो. आई एम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट आई कवर्ड ऑल दिस. Even that after the questions, this session is making you realization of that by way of analysis of that system, which is done just 1 hour earlier, within 1 hour earlier. आप समझ रहे हैं कि हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस कॉन्फिडेंट, और वो नो कहते हैं ना कि फुल कॉन्फिडेंस, मतलब सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा, पूछ जो पूछ लेना. Now my domain, I have in mind कि इतने सारे यूनिट है, सेगमेंट है, कॉन्सेप्ट और नेचर है, ओनर्स ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, सब पे मेरी क्लियरिटी है. 313 पूछोगे वो भी बताएंगे. यदि तुम जहां से प्रॉक्सिमिटी पे हो, हम वही कन्फाइन करें. 1 लाइन का पूछो, 10 लाइन का पूछो, सब लिखने के लिए हम तैयार हैं. Go 1 marks question, 2 marks question, objective question, this question, that question, whatever you want, ask. We'll cover.
नॉट इवन दैट, इफ यू वांट टू अप्लाई अप्लाई, आप उसकी ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन पढ़ करके आप देख लीजिए इसके फैक्ट को, आपको पक्का मिल जाएगा। आप पिछले 2-3 साल की ड्राफ्टिंग देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये। एक बार नहीं, रिपीटेटिवली 3-4 बार मिलेगा। So this is the master strokes what I explained you. So don't think like that. Be मतलब थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए सोच में कि हम एग्जामिनर के माइंड को अभी नहीं मैप करने जा रहे हैं। आप जब लीड लेंगे ना तब क्वेश्चन वो बदल जाएगा कि वो फॉलो करे मुझे। अब वो सोचे कि कैसा क्वेश्चन बनाए कि जहां से ये छोड़ पाए, और यदि वो मेरे पीछे लग गया तो निश्चित से आप यकीन मानिए हम तो अटैक कर ही देंगे कि बाकी के जितने भी एप्लीकेंट है कोई भी नहीं कर पाए। हारने वाले तो हम हैं नहीं, बिकॉज वी आर इंडियन। ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, भरत जी, सर सर जोशीला भाषण था ना ये। बहुत बहुत भयंकर जोशीला था सर। सर हाँ था या नहीं जोशीला? आपका टैगलाइन अच्छा है सर, वी आर इंडियन। ये वेरी साइंटिफिकली है, बहुत लाइटर मोड में हम लोग बोल रहे हैं, बट दिस इज द एक्सट्रीमली साइंटिफिक। इवन ये वो मोड है रियलाइज करने का कि अब एक बार आप करेंगे तभी रियलाइज कर पाएंगे। ये आज की एक्सरसाइज बिल्कुल ही अलग तरीके से थी और अलग डायमेंशन पर थी और इसका एक अलग इम्पैक्ट है, बट द सब्जेक्ट टू कंडीशन इज यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस मैं यहाँ करा नहीं सकता। हमने आपको ड्राफ्टिंग के लिए क्वेश्चन दे दिया, उसको ड्राफ्ट तो की। क्या ओम प्रकाश जी? सर आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब वो उसको गाय और भैंस को देते हैं ना, नाल बोलते हैं सर उसको, मुंह पकड़ के, अगर वो खिलाओगे हमें तो फिर कुछ याद ही नहीं होगा। अगर वो करना ही नहीं मुझे, वो मैं करना ही नहीं ना, उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। हाँ तो वो नहीं कर रहे तो अच्छा है, जब ही याद होगा सर। सिविलाइज वर्ल्ड में उसी को स्पून फीडिंग कहते हैं ना, चम्मच से खिलाना। यस सर। वो मैं नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। वो करोगे तो सर नुकसान कर रहे हो फिर, अगर वो करोगे भी तो। हम तो सर ऑलरेडी कर रही है जो काम आप बता रहे हो ना सर, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए, हम लोग उसी एंगल से इसको अरे सर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यदि हमारे इस डिस्कशन का और इस सेशन का कंट्रीब्यूशन उस पे किए बिना यदि आप उस लेवल को अचीव कर जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं दोनों चीजें एक साथ चलती है सर, एक साथ थोड़ा। आप जब कर ही रहे हैं तो मुझे करने की जरूरत नहीं। जहां पर आप प्रॉपर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं इंटरफेयर सर आज करने आपने बहुत अच्छा एक जो दिया ना ये एग्जाम्पल इसका, कि हम हैंड नोट से भी इसको लें और अच्छी तरह से, ये बहुत बेहतरीन चीज थी। हमारे केस लॉज में बहुत कुछ ऐड करेगा सर। इट इज ए न्यू थिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत कंक्लूसिवली वर्ड में, वन एंड फाइनल, और दोबारा रिपीट मैं नहीं करूंगा। इस प्रोसेस में कहीं से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प मत सर लीजिए। वो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूर है हमसे, हम उसे। आप मीन्स नॉट ओनली एडमिन, आप मीन्स एवरीवन इज हियर, एवरीवन इन द ग्रुप सर। इस प्रोसेस में। इसके अलावा आप जितना ले लीजिए, लेकिन इस प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस किया उसमें नहीं चाहिए। नहीं सर, इसका फायदा ही नहीं कोई, उसके अधिक तो मत करिए, इससे बढ़िया तो फिर वो जीरो ही है, क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ रहना नहीं है। यू नथिंग टू रिकॉल, नथिंग टू एक्सप्लेन। दैट इज अ प्री कंडीशन सर, दैट्स अ प्री कंडीशन। एनी मोर क्वेश्चन? I think it is 7:10 sir. Yeah, people are leaving. So have a nice day.